Sunil sir, please Okay. adjust your camera so that we can see the banner. More that side. Wall है करा banner. No, still it is not. Security support. याला हे जी हे आहे आपल्या बॉर्डर जे आहे म्यूट करा बताना. और कार्तिक सर क्या चल रहा बाकी? बस ठीक है, doing fine. I'm busy with these exams now. Yes. Yeah. We were not expecting this, no? It came all of a sudden, and then there is one part that we have to deal with the university, and the other part is conducting all those exams of the failure students. So even if there is one student, you have to set the paper. Yes. And unfortunately, we have one or two students in every examination. At least the English teachers can't get rid of all this. खडतकर सर ऐकून राहिले असतील तर ऐकून घ्या. हा, कारण काय हे जे आहे ना टेक्निकलिटीज खूप आहे. एकही पेपर आहे तर एक्झाम सेट करायचे. Do a review of all the papers which we have to conduct. Khadatkar sir, this is not the platform. We'll talk at length. Sunil sir, we can start. Participants कम आए हैं तुम्हारे? We can start, Sunil sir. Yeah, I am ready at my end. I am ready. I mean, is it going live on YouTube? No. Sunil sir, we are going live. Students को आपने लिंक दी हुई है. पाटिल मैडम. Every day it's a different aspect. Yeah. We took Women's Day, International Women's Day celebration. It was live on YouTube. Okay. So I think this is not a live sort of. It is only on Zoom that students are going to get connected. Sunil sir, सुरू करायला काही हरकत नाही. We can start. Good morning, everyone. I welcome you all in today's online session on student mentoring. First of all, I welcome our guest, Dr. Panikar sir. I welcome respected principal, Dr. Priya Vanzari madam, and all my colleagues who have joined in this online session. I also welcome all the students who have joined join us through this online platform. The role of teacher in modern age has increased in a multifold way. He has not remained a person who only teaches, but who also he has to perform a role as a teacher, mentor, counselor, facilitator, psychologist, guardian. Nowadays, student mentoring has become the most vital thing in higher education. Student mentoring helps in understanding students' academic as well as other problems and chalk out a strategy to make them ready to cope up those problems. The mentoring system has also been introduced to establish a better and effective student-teacher relationship. Today, we have invited respected Dr. Panikar sir to throw light on such an important topic. On behalf of Santaji Mahavidyalaya and Student Mentoring Cell, I heartily welcome Dr. Panikar sir
in this online session on student mentoring. We have with us our respected principal, Dr. Priya Vanzari Madam, under whose guidance this program has been organized. I request Dr. Priya Vanzari Madam to chair this online session. Before we start the program, I request our respected principal, Dr. Priya Vanzari Madam, to make introductory remark. Thank you, Sunil sir. In a few days' time, I will be addressing Sunil sir as Dr. Sunil. Thank you, madam. Welcome, Dr. Karthik Panikar sir. Thank you, madam. Today, 10th March 2021, we are ushering into a golden era, sir. And this is worth mentioning because Golden Jubilee celebrations are underway. And to celebrate a golden era, Golden Jubilee for a college is indeed prestigious. The reason being, many colleges are there who must have completed more than 50 years or so. But for us, it is the first time. 25 years, I think Silver Jubilee celebrations were there, but it was a normal course. It was having significance, but not much importance. Now, as we usher into a golden era, I think the importance and significance all become more elaborate. The reason being, higher education lays emphasis on certain things. And here we have today all our Santaji College, senior college teachers, my colleagues, and we are missing Nihal sir. Yes. He has some limitation. That is why he's not able to join. And all these students who have logged in today on the Zoom platform. Mentoring cell coordinator Sunil sir made it a point that this mentoring activity, which we are undertaking in a large scale, should have a particular setup, a meeting where students get connected through an online mode. So this was the basic idea. Mentoring should never be stopped. It is an ongoing process. Like we know that there are many aspects, faculty positions are interested with, they teach so many things, but mentoring is a thing that is very crucial in higher education, and they are not taught how to mentor. There is no formal training like we do formal training for all the other aspects. I think so orientation रहता है हमारे लिए, academic staff college इतने अच्छे activities लेता है, we have our refresher courses, but mentoring as such, which has so much importance in higher education, should have a specific training. But I think it is a natural course that we teachers are mentors, inborn mentors. We have that aspect. Long before UGC has emphasized or started stressing on this activity, we always used to mentor our students. For the reason being that our students need that mentoring. Our students are in that crucial age of higher education where they are in need of mentoring. They get this mentoring through their teachers. That is the best aspect. So faculty members are expected to advise undergraduate and graduate students and postgraduate students, even colleagues, which they are always with together. And as support or recognition is not there for this work, but UGC and NAC has insisted that you can and you should make it a regular pattern where you are mentoring each teacher is mentoring at least 5 to 6 students, and that mentor-mentee relationship is nicely, clearly established. But I would like to add that not a single mentor can provide everything a student needs. In fact, mentorship that recognizes the differences and feel that they belong in the institutions and the progress also matters. Students need to play an important role here. It is not only that teachers are analyzing, mentoring their students, but students also have a role to play. They have to
access all the mentoring activities or advice which they are getting, and exactly tell how they feel or what more they need. That is give and take, or interactive sort of mentorship where students will be benefited more. So if they are facing any roadblocks, either in their personal life, emotional life, or learning life, they should be able to discuss very clearly with their mentors. And I think the teacher who is mentoring that particular student should be knowing that this student has this many problems, psychological problems, emotional problems, family problems, and that student, he or she is facing the roadblocks. So that sort of relationship works very better and very well, I suppose. There should be clarity, and feedback should be there. Feedback in the form of forms, or feedback directly, teacher, I want mentoring in such an aspect. Sir Karthik sir, I would like to mention there was a girl student which I was mentoring some 4 to 5 years back, and it was a blessing in disguise for her. She had discussed so many personal things, and we were able to solve nearly all of them because she had discussed, and that really benefited. And she came back and acknowledged the fact that due to the advice and mentoring which I received in this college, I was able to lay more focus on my standing as an independent student, or working pattern I could acknowledge and adapt to the surroundings very easily. So that is a feather in the cap if students acknowledge such thing. This is what mentoring is all about. As we all know, Karthik sir is going to speak elaborately on this particular topic today. Students are going to get immense benefit of what Karthik sir is going to discuss with us today. But UGC has made this mentor-mentee program a very important aspect. Even in colleges, sir, we are mentoring, we are in a mentor-mentee relationship with 3 colleges tie-up, which UGC had notified to us, and we have undertaken many programs also in that tie-up. So it was expected that if your college is plus, so you have to tie up with colleges which are below that grade, not below, but at par, so that you can help in them achieving at least that. It was for that purpose UGC had initiated. COVID times, all in a standstill mode, but we did many programs, and I think those colleges were benefited and we were more benefited, sir. Because what happens when we are mentoring a college which is wants to learn something from us, or which wants to take something from us, we also learn many things from them. They can do very excellently at times, and we have to adapt to their style also. So this is what mentor-mentee relationship is all about. We move forward, and we see that there are phases of mentoring where their preparation is involved, enabling growth is involved, and of course closure is involved. If at all we start mentoring and we leave it open-ended without making a formal closure, then it might be a waste of time and efforts. It should have a proper format where closure is also very necessary, I believe so. This is from the principal's desk. I wish all the participants a very healthy interactive session from Dr. Karthik sir, very good friend of ours. And with this, I will say thank you to Sunil sir for giving me a chance to put my words. Thank you, sir. Yes, it's okay, Sunil sir. Your voice is not. Yeah. You're mute, huh? Yes. Sir, Sunil sir, you need to unmute yourself, I suppose. The audio part is missing. Yes. Yes. Thank you, madam. Now I invite respected Dr. Karthik Panicker sir
to deliver his talk on student mentoring. Before we get enlightened by his talk, let me give brief introduction about Dr. Karthik Panikar sir. Dr. Karthik Panikar sir is the head Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. He is also shouldering the responsibility as the IQAC coordinator of J.M. Patel College, Bhandara. He has 25 years teaching experience at UG and PG level. He is the chairman of the Board of Studies in Languages of Science faculty. Dr. Karthik Panikar has to his credit more than 20 research papers in reputed peer-reviewed journals. He has edited 8 textbooks which have been prescribed for different undergraduate programs of the university. He has been a member of the syllabus revision committee for different UG courses. I request Dr. Karthik Panikar sir to deliver his talk on student mentoring. Before you start, sir, sorry for interrupting. We have a good audience. More than 50 students have joined and they'll be joining. Sir, I'll be logging off because I have a Viva, online Viva. Okay. So I'll be addressing that at 12:30. I'll listen to you for 10 minutes, but afterwards I'll see the recorded version. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sunil sir, for your kind introduction. The Honorable Principal of the college, Dr. Priya Banjari, faculty members of Santaji Mahavidyalaya, the coordinator of this program, Sunil Ramteke. In due course of time, he would be Dr. Sunil Ramteke, as Dr. Banjari said. And my dear students, at the very outset, let me congratulate you all for the Golden Jubilee celebrations of your institution. It is indeed a very proud moment for any institution to cross that milestone of 50 years. Your institution is 50 years young. There is a lot of potential in your institution, and there is a lot that you can achieve in course of time. I myself was the coordinator of the Golden Jubilee celebrations of our college some 6-7 years back, and we received a wonderful response for the different competitions that we had organized from your institution. Some of the teams from your institution won prizes also, I remember, and I would be very happy to contribute in any way in your Golden Jubilee celebrations. I means I, on behalf of the institution, I'm telling you all this. It's a wonderful journey that you had, and I suppose you'll have even better journey in the future. Actually, before I start my talk as such, I don't know if it's going to be an enlightening talk, but I'm just placing this rider before I start that I am not an expert in student mentoring. Let me tell you, I don't have any qualification per se, but I would like to share some of the experiences that I've had as an IQAC coordinator, as a student development officer, and as the dean administration of the college. So in course of this multiple assignments that I have come across students from different walks of life, and Sunil sir, you'll have to mute yourself, Sunil sir. Sorry. Yes, madam. Yes, madam. Yeah, and we find students facing all kinds of problems. So Sunil sir, can I share my screen, my presentation? Sir, you will have to enable the participant screen sharing. अभी disable किया हुआ है. Manisha Patel, madam, please. And is it okay if I go ahead with a mix of Hindi and English, or it should be English? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. It's comfortable. There are some students also, I suppose. Patel, madam, उनको screen sharing का option दो.
Sir, you can share your screen. It would be visible to participants. No, I'm trying to share the screen, but it is saying host has disabled the participant screen sharing. I'm trying to share my screen. You make him post no? कार्तिक ये पनिकर सर. स्क्रीन शेयरिंग का जो एरो है ना सर, उसके बाजू में एक और एरो अगर आप क्लिक करेंगे तो जो होस्ट होगा वो वहां से मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स अलाउ करना पड़ेगा आपको. यस, नाउ आई कैन सर. Okay, sir. Sir, can you see the slides now? Yes, sir. Yes, sir. And It's visible, sir. Karthik, sir. Yeah, It will. yeah. Okay. Yeah. As I said, I mean, I have this rider in place that I'm not an expert in student mentoring, and I'll just try to share some of my observations, some of my own ideas about student mentoring, because as such, as Dr. Vanjari said, we don't have any qualification to mentor the students. We all learn from our experiences, and maybe experience is the best teacher. So I consider that as the only qualification that I have right now as I make this presentation. Okay. Now this is the first slide, and there are some terms that are written on the screen on the image that I have. Say, I'll just read out. कुछ बच्चे भी यहाँ पर होंगे. Goals, coaching, guidance, training, motivation, knowledge, support, success. ये सारे शब्द हमारे को मेंटरिंग के साथ में रिलेटेड लगते हैं. ये अब वो कैसे रिलेट करते हैं हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम देखते जाएंगे. ये उसका बड़ा पिक्चर है, ये इसमें और थोड़ा सा आप क्लियरली देख सकते हैं. ओके, नाउ हम कुछ मेंटीज और मेंटर्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं. I have put these two images deliberately. These are modern times mentees and mentors. मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अगर इसमें से कोई आइडेंटिफाई कर सकता हूँ तो मेरा जो स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है, वहां पे एक फेमिलियर फेस है और उनके साथ में एक येलो टी शर्ट पहन के एक जेंटलमैन है. देयर इज अ जेंटलमैन हु इज in yellow t-shirt, और उसके बाजू में एक और दो लोग दिखाई देते हैं. Is there any way the students can identify these people in these two images? कोई स्टूडेंट्स है चैट बॉक्स वगैरह में जाकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है उसमें से एक पर्सन को तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग. It's easy to identify him. Okay, मैं आपको बता देता हूं कुछ चैट बॉक्स में कुछ आया है, मुझे तो दिख नहीं रहा अभी. तो on the left hand side is Virat Kohli, the captain of the Indian cricket team, and just by his side is his mentor Rajkumar Sharma, the man who Kohli himself believes has been an instrumental in making him what he is today. कोहली का एक मैं पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि राजकुमार शर्मा मेरे लाइफ में नहीं आते तो पता नहीं मैं यहाँ पहुंच पाता भी नहीं कि नहीं करके. एंड देयर इज अनदर पिक्चर. अभी हम दो दिन पहले ही हमने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया है, तो आई डेलिबरेटली डिसाइडेड टू पुट दिस पिक्चर हियर. The other picture is that of PV Sindhu, the girl who has brought laurels for our country in badminton. और उनके बाजू में उनके एक मेंटर है. कई बार हम मेंटर्स को पहचानते भी नहीं हैं, ये हमारी प्रॉब्लम. हम हीरोज को पहचानते हैं बट उनके मेंटर्स को नहीं पहचानते. तो उनके बाजू में ही उनके मेंटर है जो अपने आप में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन रहे, पुलेला गोपीचंद उनके बाजू में ही बैठे हुए हैं. तो ये मॉडर्न टाइम्स के दो इमेजेस हैं जिसमें on the one side we have the mentees and on the other hand we have the mentors. Now whatever
Virat Kohli has achieved or whatever PV Sindhu has achieved, both of them think that they have achieved because they were mentored by the right person. They were mentored by the right person at the right point of time in their life. हो सकता है वो इसके अलावा कई लोग इसके बिना भी कोचिंग के बिना भी आगे आ जाते हैं, लेकिन इनका अगर वो मानना है कि इनके ये लोग इनकी जिंदगी में नहीं आते, शायद राजकुमार शर्मा नहीं आते, तो विराट कोहली, शायद आज की जो विराट कोहली वो नहीं होते, और पीवी सिंधु जो आज की पीवी सिंधु है वो शायद नहीं हो पाती। तो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल उनके कोच या उनके मेंटर का रहा है। अब नाउ इज mentoring a new thing? So I would say no. Mentoring is not a new thing. It's an age-old phenomena. Now we have formalized it. That is a different thing. हमने अभी उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया है, वो अलग चीज है। लेकिन क्या इसके पहले कोई मेंटरिंग होती थी क्या? तो होती थी। मेरे ख्याल से जब से ह्यूमन रेस इस हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, तब से ये मेंटरिंग होते आया है, बट इट वाज वेरी इनफॉर्मल। आई मीन इसको कोई हमने कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं देकर रखा था। तो हमारे यहाँ पे हम पुरानी कुछ चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें अर्जुना और लॉर्ड कृष्णा का एक रिलेशनशिप है। तो अर्जुना के जब वो युद्ध लड़ रहे थे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। वो एक समय पे तो युद्ध भी नहीं लड़ना चाहते थे वो। तो उनके साथ में अगर लॉर्ड कृष्णा नहीं होते जो उनको मेंटर करते थे, एक तरीके से वो मेंटरिंग ही था वो, तो वो अगर मेंटर नहीं करते थे तो शायद अर्जुना वो युद्ध नहीं लड़ते थे, और शायद वो कामयाब कितने हो पाते हमको नहीं पता। ये दूसरे साइड में एक हमारे पुराने समय की एक दो लोगों का मैंने इमेज दिखाया है, प्रेजेंट किया है। वो उसके अंदर में है अलेक्जेंडर, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, और उनके टीचर, उनके मेंटर अरिस्टोटल। हम मेरे ख्याल से हम सबको मालूम है, इतने बड़े फिलोसोफर। Aristotle was more than a philosopher. तो अरिस्टोटल जैसे उनको मेंटर मिले, एंड अलेक्जेंडर became Alexander the Great. Had it not been for Aristotle, we never know what would have happened to Alexander. Alexander के सामने वो जो the great, वो जो हम एडजेक्टिव लगाते हैं, वो हम लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हमको नहीं पता। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं जस्ट ये दो डिफरेंट ऐसे टाइम पीरियड्स के आपको ये इमेजेस दिखा के बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मेंटरिंग हैज ऑलवेज बीन देयर इन आवर सोसाइटी। इट हैज ऑलवेज बीन देयर। अभी हमने उसको फॉर्मलाइज कर दिया। अभी हम कुछ किसी को कोच बोलते हैं, अब किसी को हम हमारे यहाँ जैसे अभी यूजीसी ने बोला है कि हमारे पास एक मेंटरिंग का सिस्टम होना चाहिए, तो हमने एक सिस्टम बना दिया है। लेकिन पहले से ही ये मेंटरिंग हुआ करती थी। अब हम कॉलेजेस के बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि हमारी एक रिक्वायरमेंट जो है यूजीसी हमसे एक्सपेक्ट करती है, नैक हमसे एक्सपेक्ट करती है कि जैसे ही हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, soon as we complete the admission process, we are supposed to allocate a certain number of students to a teacher. Every teacher is supposed to mentor. हर टीचर को कुछ स्टूडेंट्स को मेंटर करने की जिम्मेदारी दी जाती है, और उसका हमको बाकायदा लिस्ट बनाना पड़ता है, हमको नोटिफाई करना पड़ता है, और वो नोटिफिकेशन मस्ट रीच द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर. द टीचर मस्ट नो who are the students he or she has to mentor, and the student must know कि मुझे मेंटर करके कौन सा टीचर दिया गया है. अब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आइडियली एक टीचर और जो स्टूडेंट्स का रेशियो होना चाहिए, इसके अंदर में एक मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15-20 स्टूडेंट्स का होना चाहिए ग्रुप.
बट देन हम सभी के कॉलेजेस का, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हम सभी के कॉलेजेस में, क्योंकि अभी स्टाफ की जो हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो कम है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर. कई बार हमारे यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स assigned to a teacher is around 60, in times it is 80 also. क्योंकि हमारे पास जो फुल टाइम टीचर्स हम जिसको बोलते हैं, जो दोज हु आर ऑन रेगुलर रोल ऑफ द कॉलेज, उन्हीं को नैक बोलती है कि आप इनको अलॉट करिए करके. तो अगर हम देखें तो वो रेशियो हमारा बड़ा खराब रहता है. और एक अगर आप ऐसा भी सोचे कि एक टीचर 80 या 60 स्टूडेंट पे हरदम नजर रखेगा, तो दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल ऑल्सो, प्रैक्टिकली ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल. तो अब हमने हमारे यहाँ पे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हमको बनाने के लिए बताया, यूजीसी ने बताया, नैक ने बताया. अभी क्यों बनाने के लिए बताया है, तो हम उसके लिए थोड़ा हमको कुछ साल पहले की कुछ घटनाएं जो है उनकी तरफ जानी पड़ेंगी. we'll have to go back to some important or an unfortunate events that took place in some of the institutions some years back. कुछ साल पहले ऐसा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, खासकर इंक्लूडिंग आईआईटीज की मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स स्टार्टेड टेकिंग सम अनफॉर्चुनेट स्टेप्स. कुछ बच्चे जो है सुसाइड करने लगे, कुछ बच्चों ने सुसाइड के अटेम्प्ट किए. और कई बार जब वो एक स्टडी कंडक्ट की गई तो उसमें पता चला कि वो स्टूडेंट के पास की जो परेशानी है उसको यही नहीं मालूम था कि वो किसके साथ वो शेयर करे, किसके साथ वो बोले. क्योंकि कई बार ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे रहते हैं, दे स्टे अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे स्टे अवे मोस्टली फ्रॉम देयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एज वेल, दे स्टे अवे फ्रॉम देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द हॉस्टल्स, and at times they are overawed by the institution they join. एंड हमारी भी एक आदत थी, हमारी कमजोरी, हमारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ शेयर नहीं करते. और वो कई बार वो जो यंग माइंड से दे फील सफोकेटेड, सब इतना सफोकेट वो फील करते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सफोकेशन, हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. दैट प्रॉब्लम में बी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, बट they don't know how to handle it, they don't know how to get out of it. और उसके चलते क्या होता था, बच्चे बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लेना शुरू कर दिया था बच्चों ने. some students even left their studies incomplete. मेरे को खुद को मालूम है, ये एक हमारे फैमिली फ्रेंड के जो बच्चे हैं उनको एनआईटी में उस बच्चे का एडमिशन हुआ था, आज से करीब 20 साल पहले की बात है. एंड he had all kinds of problems. There was no one who was with whom he could share his problems. And there are certain problems that you cannot share with your parents. There are certain problems that you cannot even tell your brother or even your sister. तो वो बताए किसको? वो उसकी जो एकेडमिक जर्नी है, वो एक नए इंस्टीट्यूशन में जब वो जाता है, उसकी जो एकेडमिक जर्नी जब उसकी शुरू होती है और एक 12th कंप्लीट करके आता है, वो एक अलग सिस्टम होता है, स्कूलिंग सिस्टम होता है, वेर इज केयर्ड फॉर, वेर इज नर्चर्ड, वेर इज लव्ड. He comes into a university system where he is all at sea. There are people and people around him, but he cannot associate himself with any of those people around him. और उसके लिए टीचर भी एक डिस्टेंट फिगर बन जाता है. The teacher comes, gives lecture, 45 minutes lecture, goes out of the class. There is not much of an interaction between the student and the teacher. तो इसीलिए ये वो सर्वे में ऐसा दिखाई दिया कि बच्चों की अगर कोई बात सिर्फ सुन लेता, if somebody had even heard of their problems, their grievances, their issues, then they might not have taken that extreme step. ये एक्सट्रीम स्टेप जो उन्होंने लेने की कोशिश की है या लिया है, that could have been stopped if they had somebody with whom they could have shared their problem. And we all know, as Vanjari madam said, कि ये जो adolescence का जो phase होता है, that is a very challenging phase. सभी उस दौर से जब गुजरते हैं
तो वो कई नई चीजों को नेविगेट उनको करना पड़ता, दे हैव टू नेविगेट सो मेनी न्यू थिंग्स, देयर आर सो मेनी distractions that they have, and there is nobody to guide them through this phase. तो इसीलिए यूजीसी या जो हमारे एपेक्स बॉडीज है उन्होंने डिसाइड किया कि एक कॉलेज में, हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक फ्रेमवर्क चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क which the students must know and which the teachers must also know that there is a framework and there are many issues that can be resolved within this framework. At least there are issues that can be heard in this framework. और इसीलिए फिर वो मेंटरिंग प्रोग्राम को बड़े सीरियसली लिया गया, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट कंपल्सरी फॉर अस टू हैव टू नोटिफाई द स्टूडेंट्स हु वुड बी मेंटर्ड बाय विच टीचर. अब ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ नोटिफाई करने से काम नहीं चलेगा. My son is studying in a university. It's a deemed to be university, and when we went there for the admission, finalization of the admissions and all, we were also invited to be a part of the induction program. बच्चों का induction program होता, that is a different thing. We teachers were also invited to be a part of the induction program, and we were told who would be the mentor for my son. कौन सा टीचर मेरे बच्चे का मेंटर होगा, उनके पास में कौन से 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, जो भी लिस्ट थी वो लिस्ट वहां डिस्प्ले किया गया और हमारे को बताया गया कि दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द टीचर, यू कैन ऑलवेज कॉल देम व्हेन यू नीड. बच्चे को भी, एंड वी वर सपोज टू, 12th के बाद जब बच्चे जाते हैं इनको भी ज्यादा ये नहीं होता बात करने का वगैरह, तो वी वर ऑलवेज asked to tell our child that this is the first person you should be contacting in case of a problem, and I must say that the हमने जितने भी बार वो टीचर को कॉल किया, if he was busy with something, he was engaging something, he would drop a message, sir, please SMS me the issue, please put your problem in my WhatsApp, and he would make it a point to call us back whenever he was free, as soon as he was free, he or she was free. तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, जब वो बच्चा नया नया आता है, उसके दोस्त भी कई बार बनने के रहते हैं, उसको कम से कम मालूम रहता है मैं एक नई जगह पे आया हूँ, एक नया सिस्टम है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो मुझे किसको कॉल करना है. देयर आर टीचर्स हु कम टू द क्लास एवरी डे, पर हर टीचर के साथ में वो उसका रैपो बनने के लिए टाइम लगता है. सम टीचर्स आर more friendly, some teachers like to maintain distance from their students, some teachers would say okay, you are students, I am a teacher, हमारा वो रिश्ता है, let it be formal, let it be that way, मुझे हर चीज के लिए फोन नहीं करना. तो इसीलिए ये एक फ्रेमवर्क हमारे लिए जरूरी है कि ये बच्चे को भी पता रहे कि किसको फोन करना है, who would be the first person I should be calling if I have a problem. ये उसको पता होना चाहिए, नंबर उसके पास में होना चाहिए. द टीचर और द मेंटर शुड बी एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट all times, at all times. If he cannot receive that phone, at least the student must know कि मुझे ये सर को SMS कर देना है, ये मुझे WhatsApp कर देना. और इसीलिए सबसे पहले जैसी वो लिस्ट डिस्प्ले होती है मेंटर मेंटी की, उसी टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू इमीडिएटली अरेंज ए मीटिंग विथ हिज मेंटीज. उसके जो भी चार्ज में जो बच्चे उसको अलॉट किए होंगे, वो बच्चों को इमीडिएटली उनके साथ एक मीटिंग लेना, एंड दैट मीटिंग शुड बी एज इनफॉर्मल एज पॉसिबल. ये आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. देयर इज नो रूल बुक एज सच, but I am telling you, if the student don't open up to you in the first interaction, if they feel that मैं इनसे बात करने में मुझे दिक्कत होंगी, मैं इनके पास समस्या लेकर जा नहीं सकता, then the very purpose of mentoring has failed at the very outset.
अगर पहले ही मुलाकात में बच्चे को ये लगेगा, if he realizes that I cannot call this person, it would be very difficult for me to speak to this person for whatever reason. देखो, we must realize that we have students from all kinds of backgrounds, and we as teachers भी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, we should be sensitive to these things. कि हमारे पास जो सारे बच्चे जो आएंगे वो फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड से आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सोशली वेल ऑफ बैकग्राउंड से आएंगे ये भी कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है वो एक समाज के एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हो, उनको कभी भी आइसोलेटेड फील नहीं करना चाहिए. एज टीचर्स कभी भी हमारा ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी कि हम कभी भी ये मैसेज ना जाए कि वो he is not being cared for or he is not wanted in that institution. हमारे यहाँ बच्चे अलग अलग स्कूल से भी आते हैं. some come from very good schools, some come from just ordinary schools, and some come from very indisciplined so called schools. तो ये सारे बच्चे हमारे क्लास में रहने वाले, हमारे ग्रुप में भी रहने वाले हैं. So the first thing, as I said, is for the teacher to arrange a meeting with his or her mentees, and you should be able to communicate to the students what is the purpose of this group. वो बच्चों को ये बताना, उनको भी नहीं मालूम ये मेंटरिंग उनको भी नहीं समझता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बच्चों को भी समझ में आए कि ये ग्रुप क्यों बनाया गया और मैं क्या ये टीचर के साथ में बोल सकता हूं, ये क्यों बोल सकता हूं मैं, और इसीलिए ये नंबर मेरे पास होना जरूरी है. उसको अगर नंबर आपका डायल करने के पहले अगर उसको दो बार सोचना पड़े तो वो आपका मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप का कोई मीनिंग नहीं है. उसको हाँ हो सकता है, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स. आई एम टेलिंग यू, कई लोगों को बोलते भी नहीं आता, उनको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते आता, गुड आफ्टरनून भी नहीं बोलते आता. तो वी हैव टू टेल देम कि बेटा जब आप टीचर को कॉल करो ना तो टीचर इज friendly with you, the teacher will be friendly with you, but you must respect that position of the teacher. So आप जब आप कॉल करें ना, मैसेज करें, तो आप गुड मॉर्निंग लिखिए, गुड आफ्टरनून लिखिए, गुड आफ्टरनून सर, और आप अपना नाम लिखिए. प्रिफरेबली अभी व्हाट्सएप का जमाना है एंड वी आर लिविंग इन ऑनलाइन टाइम्स. मैं कुछ ऑनलाइन अभी हमारी प्रॉब्लम्स में बताता हूँ कैसे होती है. हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए. द मेंटर शुड एंश्योर दैट अगर अलग अलग क्लास के बच्चे हैं तो अलग अलग क्लास के आप बैचेस बना लीजिए. भले एक बैच में 10 बच्चे होंगे, दूसरे बैच में 15 बच्चे होंगे, किसी और तीसरे बैच में 25 बच्चे होंगे, तो उनके अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए आप. एंड उनको ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, हमको लगता है कि ये तो मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम रहता. हमारे जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रूरल एरिया में हमारा कॉलेज है, तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको ये भी नहीं समझता है कि सर, हमारे कई बार बोलते हैं ऐड नंबर. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार बच्चे, आज भी दो बच्चों को मैंने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं करके, तो उनको ये भी नहीं समझता कि सर प्लीज ऐड दिस नंबर इन द ग्रुप, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर. ये ऐसी छोटी छोटी बातें ना, ये भी एक तरीके का उनका आप ट्रेनिंग दे रहे हैं. दिस इज ए काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स. अब हम रेस्पेक्ट के भूखे नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को ये पता होना है कि जब किसी से बात करते हैं एक सिचुएशन में, उनको कल्चर के अपना करियर भी बनाना है, तो कैसे बात करें, ये भी बात करने का तरीका भी जो आप एक तरीके से उसको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हम उनको बतानी चाहिए कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं. ये भी बताने की जरूरत है उनको कि अगर मैंने कॉल काट दिया आपका बेटा, तो ये समझ लेना कि मैं किसी मीटिंग में हूं, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं. मैं जैसे अभी मैं आपका क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, मतलब आई एम मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, मुझे एक बच्चे का कॉल आया तो मैंने उसको अभी मैं उसका कॉल काट दिया, एंड जस्ट ड्रॉप द मैसेज कि आई विल कॉल यू लेटर करके. तो उस बच्चे को पता होना चाहिए, उसको लगा मेरा कॉल सर ले नहीं रहे, तो उस बच्चे को बताना कि हो सकता है आई माइट बी बिजी. और बच्चों को भी, ये बच्चे भी इस साथ में जुड़े, इसलिए बता रहा हूं मैं. अगर टीचर एक बार आपका कॉल जब करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, यू ट्राई अगेन, तब भी नहीं रिसीव, इसका मतलब class he might be in a position where he can't take your call. हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी की मीटिंग में हो, कहीं पे भी हो सकता
तो आप मैं लिखिए, मैसेज लिखिए कि सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस class and I have a problem. I would like to discuss with you. Please call me after some time, or पनीकर सर, सर अनम्यूट कीजिए। या अनम्यूट किया सर, मेरे ख्याल से नेट का कुछ इशू था। हाँ सर। ओके सर। Sir, can you see the slide now? यस सर, यस सर। यस, तो हम मेंटरिंग की बात कर रहे थे कि मेंटरिंग की क्यों जरूरत यूजीसी को और हमारे जो एपेक्स बॉडीज है नैक वगैरह को लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसी भी अच्छे कॉलेज में ये होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स को इसकी क्या जरूरत है, स्टूडेंट्स को मेंटर्स की जरूरत है क्या, हमको क्यों मेंटर की जरूरत है। कई लोग बोलेंगे हमको क्या मेंटर की जरूरत है, व्हाई डू वी नीड ए मेंटर, वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग। तो हो सकता है कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स में भी केपेबल ऑफ हैंडलिंग द इश्यूज, but there are many students when they come to a new institution, when they come into a new scheme of things, they need all kinds of help. कई लोग, कई बार तो हमारे को ऑफिस में भी कुछ काम उनके बच्चों के नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए भी वो टीचर्स के पीछे से देखिए ना, वो मैं 3 दिन से ऑफिस में आ जा रहा हूँ, मेरा वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत सारी परेशानियां होती है। तो वो मेंटर के पास जाएगा, बताएगा सर देखिए दिस इज माय प्रॉब्लम, है ना। तो हम पहले देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड ए मेंटर। तो मैं कुछ ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, आप इसका जवाब देने की कोशिश करिए। डू यू नीड ए मेंटर? तो उसका सबसे पहला हम क्वेश्चन है हमारे पास में, डू यू नो व्हाट यू वांट टू बी। मैं स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स, ये टीचर्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर बोलेंगे कि हमको क्या जरूरत है मेंटर की, तो आप सोचिए कि आपको मालूम है क्या सही में आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है, डू यू नो हाउ टू रीच योर गोल। आपने एक लक्ष्य मान लिया कि आपके पास एक लक्ष्य है, क्या आपको पता है उस लक्ष्य तक आप कैसे पहुंचने वाले हैं। तीसरा एक क्वेश्चन है, डू यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्या आपको अपने स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस पता है। स्ट्रेंथ्स मतलब आपकी, जिसको हम ताकत बोलेंगे, और आपकी कमजोरियां आपको पता है पूरी तरीके से। एक और क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्वेश्चन है, कैन यू हैंडल फेलियर्स, कैन यू हैंडल सेटबैक्स। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर है कैन यू हैंडल फेलियर्स, कैन यू हैंडल सेटबैक्स, अगर उसका आंसर नो है तो इसका मतलब आपको मेंटर की जरूरत है। डू यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो बोलेंगे हाँ शायद कुछ तो मुझे मालूम है सर, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कुछ तो मुझे मेरी वीकनेसेस मालूम है, लेकिन मुझे सब नहीं पता सर, तो इसका मतलब आपको मेंटर की जरूरत है। आपको आईएएस बनना है लेकिन कैसे बनना है ये नहीं पता, तो देन यू नीड ए मेंटर। तो आपको मेंटर की जरूरत है। एवरी स्टूडेंट नीड्स ए मेंटर।
If Sachin Tendulkar needs a mentor, if Virat Kohli needs a mentor, if PV Sindhu needs a mentor, then you also need a mentor. अब मेंटर तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा, है ना, लेकिन वो मेंटर करता क्या है, आपके जीवन में क्या लेकर आता है, वो क्या पैकेज लेकर आता है आपके जीवन में. तो ये कुछ चीजें हैं जो एक मेंटर करता है. He helps you, he supports you, he advises you, he provides you guidance. At times he provides you certain information also, जो कि हम बहुत कैजुअली लेते होंगे, लेकिन एक कई बार एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है. कई बार कुछ जरूरत पड़ती है, असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है. असिस्टेंस बहुत अलग अलग तरीके के असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप की जरूरत पे. कभी कभी कुछ काम आपके आड़ा, तो आपको कोई एक फोन किसी का अगर चले जाए किसी को, तो हो सकता है वो काम उससे हो जाए. आपके टीचर का एक कॉल चले जाए किसी को, तो आपका कोई रुका हुआ काम कई बार हो जाएगा. कई बार मैं आपको अनुभव बताता हूं मेरे भी, कि कैसे वो बच्चों को मदद होती है अलग अलग तरीके से. तो ये these are some of the terms that describe what mentors do. बहुत simple terms है. मैंने I have deliberately tried to keep it as simple as possible. Help, support, advice, guidance, assistance, information, है ना. ये सारी चीजें एक मेंटर आपके लिए करता है. अब जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या एडमिशन ले भी लिया उसने, 1 साल भी हो गया उसका, 2 साल भी हो गया, ही माइट बी इवन ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, उसके लिए बहुत सारी चैलेंजेस होती है. एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दैट वी हैव टू फेस दिस चैलेंजेस. स्टूडेंट्स को जब भी किसी इंस्टीट्यूशन में वो जाते हैं, वो उनकी जो एकेडमिक जर्नी होती है, वो सिर्फ एक अपने आप में एक सिंपल प्लेन एकेडमिक जर्नी नहीं होती है. उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और ऐसी बहुत सारे इश्यूज होती हैं जो मैंने अभी शुरू में बताया है. यू कैन नॉट डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट डिस्कस इट विथ योर ब्रदर, you cannot discuss it with your sister, and there are certain issues which you cannot even discuss with your friends. आपके पास कई बार फ्रेंड्स होंगे, तो हमको लगता है कि मेरे फ्रेंड को बता दिया तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे ये तो सब कर रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहा. हो सकता है एक आध टॉपिक नहीं आ रहा हो, तो कई बार अपने को लगता है कि मैं ये फ्रेंड को पूछूंगा तो वो मजाक उड़ाएंगे मेरी, अरे ये कितना सिंपल सा टॉपिक है, तेरे को नहीं आता. किसी स्टूडेंट ने बोल दिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बाकी बोलते तू आईएएस ऑफिसर बनेगा. तो योर फ्रेंड्स में लाफ एट यू, योर people may not be receptive to what you are saying, है ना. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है, जो मैंने स्टूडेंट्स को इतने सालों में देखा है मैंने, कि वो उनके पास बहुत सारी एस्पिरेशंस रहती है उनकी, लेकिन वो एस्पिरेशंस शेयर करने में हेजिटेट करते. बहुत सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 60% बच्चे अपने एस्पिरेशंस बाहर बताना नहीं चाहते. उनको शर्म आती है बताने के लिए कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं एसपी बनना चाहता हूं, आईपीएस क्लियर करना चाहता हूं, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं, है ना. तो वो अपने फ्रेंड से भी कई बार वो शेयर नहीं कर पाते हो. दूसरा है कि आपकी जो एकेडमिक जर्नी है, इसको भी समझना एक बड़ा इंपॉर्टेंट. आपने कई कोर्सेस, किसी कोर्स में एडमिशन लिया होगा, फॉर एग्जांपल बीबीए में यू माइट हैव टेकन एडमिशन, यू माइट हैव टेकन इन बीएससी प्रोग्राम, यू माइट हैव टेकन एडमिशन इन बीए प्रोग्राम. तो क्या जब हम एडमिशन लेते हैं हमको प्रोग्राम के बारे में पूरा पता होता है? नहीं पता होता है. कई बार वो हमारा बहुत ही सोचा समझा डिसीजन भी नहीं होता है. अब कुछ किसी ने बोल दिया कि एडमिशन ले लो बीए में, या दोस्त ने ले लिया तो मैंने भी ले लिया. Do we actually understand our academic journey? Do we actually understand why we are going to the college? Do we actually understand what is the purpose of the degree that we are pursuing? नहीं पता होता हमारे को. मेरे तो स्टूडेंट्स कैसे कई मिलते जिनको खुद पता नहीं है कि क्या करना है बीए के बाद में. ये बीए भी उनको आई बाबा ने किसी ने बोला, या
कि सहेली की बड़ी बहन ने बोला ये ठीक हो यहाँ एडमिशन ले लो, उसने ले लिया एडमिशन। अब उसके अंदर भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, ऐसा होता है कि एक आध सब्जेक्ट हमको ठीक लगता है, बाकी सब्जेक्ट्स में हमको बहुत सारी डिफिकल्टीज रहती है, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऐसा है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो बाकी 2 या बाकी 1 3 में से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है ऐसा which might be troublesome, which might I mean you might not be comfortable in। तो ऐसे समय में ये एकेडमिक जर्नी को कंप्लीट करने में हमारे को किसी की मदद लगेगी। वो हम अपने आप से वो हमारी नैया पार नहीं होने वाली है। We will not be able to complete that journey of our own. We'll need somebody's help, somebody's support, we'll need somebody's scaffolding to be there। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई उनके लिए एक इशू नहीं है, उनके जीवन में पर्सनल इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे घर में इश्यूज रहते हैं। अब वो घर के इश्यूज कई बार किसको बताए, वो दोस्तों को भी नहीं बता सकते हैं कई बार। तो वो कि अरे मेरे घर में मेरी घर में पेरेंट्स का झगड़ा होता है, या मेरा भाई जो है ना वो थोड़ा मुझे परेशान करते रहता है, तंग करते रहता है, मेरी माँ जो है उसी का साइड लेती है, मेरे पेरेंट्स उसी का साइड लेते हैं, मेरा कोई केयर नहीं करता, आई फील अनवांटेड इन द फैमिली, है ना। कई बार गर्ल चाइल्ड की एक अलग प्रॉब्लम रहती है अपनी, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम सब एक सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, जो अच्छे सोशल बैकग्राउंड से आते हैं उनको तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, लेकिन जो चैलेंज्ड सोशल बैकग्राउंड से आते हैं उनको दिक्कतें होती है। उनको लोगों के साथ डे टू डे चीजें भी कंडक्ट करने में उनको दिक्कत होती है। फिर एक जो बहुत कॉमन जो दिखाई देता है इशू, वो है फाइनेंशियल इशू, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। फाइनेंशियल, बहुत सारे लोगों को फीस के पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होते। अब किसको बताए, कई लोग तो एडमिशन लेट इसीलिए लेते कि पैसे नहीं जमे सर, और कई बार ऐसे समय पे आते हैं जब टीचर भी कुछ नहीं कर पाता है, लास्ट डेट निकल चुकी होती है, वो आकर बताते भी नहीं है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम। मैं ये बच्चों के लिए जानबूझ के ये बता रहा हूँ कि अगर ये बच्चे इसको देख रहे हैं तो आप यू मस्ट बी रेडी टू ओपन अप विथ योर टीचर्स, विथ योर मेंटर। जो भी आपको मेंटर टीचर दिया हुआ है वो आपकी बात सुनने के लिए दिया हुआ है। आप उनके पास जाइए, उनको बताइए आप कि मेरा ये प्रॉब्लम है, एटलीस्ट बता तो दीजिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है ये अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव समबडी विथ हुम यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। कई बार तो शेयरिंग करने से ही आधी समस्या हमारी खत्म हो जाती है। उसका सॉल्यूशन निकले नहीं निकले दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू कैन शेयर, यू कैन एटलीस्ट ओपन अप। वो पेंट अप रखकर निगेटिव टेंडेंसीज अपने अंदर में क्रिएट करना, निगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करना, एंड देन वो पूरे समाज को अपना दुश्मन मान लेना, वो कम से कम वो फेज से आप निकल जाओगे। स्टूडेंट्स, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपकी कोई समस्या है देन यू गो टू योर मेंटर टीचर, ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हर। अगर मैडम होंगे तो ट्रस्ट हर, कोई सर होंगे तो ट्रस्ट हिम। अब वो आपके टीचर है आफ्टर ऑल, वो आपका अच्छा करने के लिए आए हैं, वो आपका अच्छा करना चाहते हैं। तो आप बताएंगे तो ही वो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन कोई निकाल सकता है, या एटलीस्ट कुछ तो वो सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है इस पे। अब 2 टाइप की मेंटरिंग होती है। एक होता है फॉर्मल, जिसमें मैंने बताया जैसे अभी कि हर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर अलॉट कर दिया जाता है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो मैंने अभी फॉर्मल वाला बताया आपको कि एक टीचर दे दिया गया है बच्चों को और बच्चों का काम है उनसे कांटेक्ट करना। एक दूसरा इनफॉर्मल मेंटरिंग भी होता है, जिसके अंदर में बच्चा खुद ही डिसाइड करता है कि ये टीचर ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे को ये मेंटर करके दिया हुआ नहीं है, वो तो मेरे को कोई भी समस्या है तो मैं उनको बोलूंगा, लेकिन ये टीचर ना ये इनके साथ मेरा रैपो अच्छा जमता है। तो वो हो सकता है मेरे लिए रोल मॉडल भी। हाँ, मुझे लगता है कि अरे
आदमी बनना है या व्यक्ति बनना है तो इस टीचर के समान बनना। देखो कैसे वो बात करता है, कैसे वो लोगों के साथ व्यवहार करता है ना। तो ये सारी चीजें इनफॉर्मली होती है। वो इंस्टीट्यूशन उसमें आपको कहीं किसी के साथ जोड़ता नहीं है, कोई टीचर स्टूडेंट को किसी टीचर के साथ में जोड़ता नहीं है। वो टीचर के साथ वो बच्चे खुद जुड़ जाते हैं। ऐसे कई टीचर्स हम देखते हैं कॉलेजेस में रहते हैं जो कुछ टीचर से बाकी ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। उनमें वो नेचुरल एक एबिलिटी होती है बच्चों को साथ में लेकर चलने की, बच्चों को ग्रूम करने की। क्योंकि मैंने बताया जैसे मेंटरिंग के लिए कोई ऐसा कोई किसी ने कोई कोर्स स्पेसिफाइड कोर्स किसी ने किया नहीं है, कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन किया नहीं है। तो वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। कुछ लोग बहुत नेचुरली फ्रेंडली होते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, और स्टूडेंट्स को भी लगता है अरे सर को बता देंगे ना शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने अपना खुद का एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट कर लिया आपने। अच्छी बात अगर आप कर लेते हैं। आप चाहे फॉर्मल अरेंजमेंट में हो चाहे इनफॉर्मल अरेंजमेंट में हो, I mean, it is important that you speak your mind, that you speak out with somebody. You express yourself. कई बार हो सकता है कि मुझे किसी एक चीज के लिए ये टीचर अच्छे लगते हैं, किसी और एक चीज के लिए एक टीचर अच्छे लगते हैं। You have multiple mentors. Without being designated as mentors, they mentor you. And you allow yourself to be mentored. आप खुद ही अपने आप ही मेंटर होने के लिए तैयार हो जाते हैं उनसे। अलग अलग चीजों के लिए आप अलग अलग लोगों को एक चीज के लिए एक टीचर को लाइक करते हैं। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स टीचर किसी को बड़ा अच्छा लगता हो, वो सब्जेक्ट टीचर भी अच्छा लगता हो, और एक स्पोर्ट्स टीचर भी, तो उसको लगता है कि ये वाली देखो क्वालिटी ये सर में बड़ी अच्छी है। कोई भी सिचुएशन में सर कैसे डील कर लेते, बड़ी शांति से डील कर लेते। एक टीचर होगा बहुत शायद अच्छा पढ़ाता होगा, लेकिन शायद वो सिचुएशंस नहीं हैंडल कर पाता होगा। तो ये हम लोग सब आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट परफेक्ट इन एनी वे। तो ये अलग अलग टाइप के मेंटरिंग के सिस्टम, एक तो फॉर्मल सिस्टम हमारे पास होना जरूरी है, जैसे वंजारी मैडम ने बताया हमारी नैक की रिक्वायरमेंट है, यूजीसी की रिक्वायरमेंट है, और एक हमारा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का एक काम है कि हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। कोई चीज हो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक सिस्टम है, नहीं मतलब वो सबको पता है, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द प्यून ऑफ द कॉलेज, दे नो दैट दिस सिस्टम इज देयर। तो वो सिस्टम होना हमारे पास बहुत जरूरी है। अब ये क्या है हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम, स्टूडेंट मेंटरिंग की जो एक्सपेक्टेड आउटकम है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, अगर हम इसको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूं मैं, टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल इन द कैंपस, या टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल इन द कैंपस। एज लॉन्ग एज यू आर इन द कैंपस, कैंपस के अंदर मतलब सिर्फ कैंपस का मैं उसका मीनिंग नहीं है, जब तक आप उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। तो थोड़ा पहले लाइन में थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है, आप यहीं तक पढ़िए उसको, मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल इन द कैंपस, इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है एकेडमिक सक्सेस। The expected outcome of any student mentoring is to ensure that the child or the student does well academically. The mentor or the teacher should help, the mentor or the teacher should help the students to achieve their immediate goal. Just a minute, just hold on. Yeah, extremely sorry. So the expected outcome, the second important expected outcome of student mentoring is academic success. The teacher or the mentor should help the students to achieve their immediate goal. The immediate goal might be to get their degree. To get their degree,
with flying colors. The third expected outcome is to improve the self confidence of the student. हमारे पास जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है तो बहुत डरा डरा सा रहता है, कई बार कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसको, बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसको। जब आपके यहां से निकल के जाए वो, तो स्टूडेंट को लगना चाहिए कि मैं अब किसी से भी दुनिया में बात कर सकता हूं, मैं कोई भी चीज बोल सकता हूं, मैं अपनी बाजू रख सकता हूं, मैं अपने प्रॉब्लम्स रख सकता हूं, मैं जब मुझे कोई बोलने का मौका आएगा तो मैं बोल सकता हूं, मैं डरूंगा नहीं। मैं एक चौथा और इंपॉर्टेंट आउटकम जो है वो है क्रिएटिंग करियर अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। ये उसका लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां से वो चले जाएगा, उसके बाद वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वो हमारे यहीं पे जब वो रहता है तो उसके अंदर में एक अवेयरनेस आ जाना चाहिए कि मुझे अपना करियर कहां बनाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बनाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना है, या मुझे मेरे अंदर का जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, मेरे सर ने बताया है मुझे। और देखो मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो वैसा था, अब मैं फाइनल ईयर में जब जा रहा हूं यहां से, फाइनल ईयर में जब जा रहा हूं यहां से, तो मैं बहुत बदला हुआ व्यक्ति हूं। हमारे यहाँ भी एक स्टूडेंट है जो अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में है, वो तो वो हरदम जब आता है तो वो बोलता है, सर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना तो मुझे तो बोलते भी नहीं आता, मुझे तो टीचर से कैसे बात करना ये नहीं आता था। और अभी तो वो बहुत मतलब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में उसको बड़ा नाम है उसका। तो वो हरदम बोलता है, सर मेरे को मैं जो भी हूँ वो मुझे इस कॉलेज ने दिया, ये टीचर्स ने दिया। वो टीचर्स ने मैं जब आया था तो मेरे गांव से, मेरे घर में ऐसा कोई था नहीं वो कोई अच्छी पढ़ाई किया हो, तो मुझे पढ़ना है, करियर बनाना है, वो अवेयरनेस मुझे इस कॉलेज में आने के बाद मिला। तो हमारे को उसको डिग्री तो उसकी कंप्लीट करवानी है, वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल रहेगा, लेकिन हमारा जो एज ए इंस्टीट्यूशन हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट ये होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर में एक अवेयरनेस आए कि उसको अपना करियर बनाना है, कहाँ बनाना है। अगर ये भी उसके अंदर में अवेयरनेस आ जाए तो दैट इज ए जॉब वेल डन। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप जब तक अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब आप टीचर के साथ में आप जब तक टाइम नहीं बिताओगे, अभी हम वी आर इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हमारे यहाँ तो हम अभी भी ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नागपुर में तो ऑफलाइन क्लासेस का तो सवाल ही नहीं उठता, लॉकडाउन है, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही होंगी। अब ऑनलाइन में भी समस्याएं हैं बहुत सारे बच्चों को। आई गेट कॉल्स रेगुलरली फ्रॉम स्टूडेंट्स, सर मेरे घर में एक ही मोबाइल है, कैसे मैं पढ़ूं, मेरे भाई भी 12th में है, तो वो कैसे, अब मुझे उसका 12th इंपॉर्टेंट है, तो हमारे एक ही मोबाइल है, तो वो उसकी क्लासेस जब होती है तो मेरा क्लास मैं नहीं कर पाती, और खासकर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए और भी। तो फिर हम बताते हैं, बेटा कोई चिंता मत करो, तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बाद में व्हाट्सएप पे भेज देंगे, और वैसे भी कोई दिक्कत हो तो आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। तो बहुत सारी परेशानी रहती है, ऑनलाइन में भी अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं, एंड दिस इज न्यू टू ऑल ऑफ अस। टीचर्स के लिए भी नया है ये सिस्टम, बच्चों के लिए भी नया है, और कई बार कनेक्टिविटी के इश्यूज है, कई लोगों के पास कनेक्शन का भी इशू है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हमको सबको मिलके ये समय से आगे बढ़ना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये 4 एक्सपेक्टेड आउटकम्स है स्टूडेंट मेंटरिंग के, और अगर हम ये, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इतने अगर भी हम कर पाए तो काफी अच्छा होगा। अब फॉर दिस मेंटरिंग प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल, ये बहुत छोटे छोटे 3 पॉइंट्स लिया है मैंने, क्या चीजें मेंटी को करने हैं और क्या चीजें मेंटर को करनी है। 3 बुलेट पॉइंट्स ही है ये। द मेंटी जो स्टूडेंट है, ही मस्ट स्पीक आउट। जब वो बच्चा आपके साथ बोलता है तो मेंटर का काम क्या है? उसकी समस्या सुन लेना, पहला है उसकी समस्या सुन लेना, समझ लेना, और उसके बाद उसको कोई फीडबैक देना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं क्या करना है। हो सकता है इमीडिएटली आपके पास में उस समय कोई सॉल्यूशन नहीं हो। मेंटी को अगर कोई सहायता की जरूरत है तो ही मस्ट अगेन टेल
his mentor that he wants help. वो हेल्प किसी भी टाइप की हो सकती है. It could be on some social issue, it could be on some financial issue, it could be personal counseling also. Seek help. When you need help, you must seek help. हम सभी लोग दुनिया में अपने आप में परिपूर्ण नहीं है. बड़े से बड़े व्यक्ति को भी सलाह की जरूरत पड़ती है, मशवरे की जरूरत पड़ती है. इसलिए प्रधानमंत्रियों के पास भी सलाहकार होते हैं, राजा महाराजाओं के पास भी सलाहकार हुआ करते थे. तो मेंटर का काम है, जब उसको मदद की जरूरत पड़ती है, सलाह की जरूरत पड़ती है, तो वो सलाह देना, एडवाइस देना. अब मेंटी का काम क्या है? जो बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते पे चलना, उस रास्ते पे चलना. क्योंकि आप जो चीज नहीं देख सकते ना, वो आपका टीचर देख सकता है. आपके टीचर ने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है, आपसे ज्यादा उसने दुनिया देखी, उसको ज्यादा समझ है दुनिया की. हो सकता है आप उससे होशियार हो सकते हो, लेकिन समझ के मामले में आप अपने, यू कैन नॉट बीट योर टीचर. वो उन जो आप चीजें सोच भी नहीं सकते, वो सोच लेते हैं कि इसका कल जाकर क्या हो जाएगा. ये मेंटर का काम है, जब वो चलता है उस रास्ते पे, तो उसको सपोर्ट करना, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना. ये एक सिंपल सा तीनों के लिए एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम सब कर सकते हैं. अब हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मेंटर, आई एम ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है व्हेन ही और शी इज ए मेंटर? अंडरस्टैंड योर मेंटी. अंडरस्टैंड योर मेंटी मीन्स अंडरस्टैंड हिज बैकग्राउंड, understand his parentage, understand his or her aspirations. किसी भी बच्चे को जब आप अपना एक मेंटी करके एक्सेप्ट करते हैं ना, तो पहले उसके बैकग्राउंड समझिए, वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वो उसकी कुछ उम्मीदें रहती है, आशाएं रहती है. वो आशाएं, बड़ी उम्मीदें लेकर, ऊर्जा लेकर वो एजुकेशन सिस्टम में आता है, हायर एजुकेशन सिस्टम में. उसके कई बार वो बच्चे को अपने खुद की प्रॉब्लम समझने में बड़ी मुश्किल जाती है. उसको मालूम रहता कुछ तो भी गड़बड़ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसको नहीं समझता. तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स. और आपको लगता है ये बच्चा होशियार है, 80 वाला है, 90 पर जा सकता है, उसके लिए 90 का बेंचमार्क अब तय करिए. पुश हिम टू अचीव दैट लिमिट, support him to achieve that benchmark. Instill a sense of confidence. मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. आप अगर कॉन्फिडेंस दे देंगे ना बच्चे को, तो वो बहुत सारी चीजों में अपने आप आगे चले जाएगा. अब कई बार ऐसा होता है कि वो मेंटर के पास में वो मेंटी के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता. हम दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बच्ची के 2 साल से प्रॉब्लम है. मैं उसको छोटे हिस्सों में उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहा हूं, लेकिन उसके प्रॉब्लम अनएंडिंग प्रॉब्लम्स है उसके. उसको हेल्थ इशू अलग, फैमिली इशू अलग, फाइनेंशियल इशू अलग. तो ऐसा कई बार होता है कि टीचर किसी एक मेंटी के सारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाता, तो उसको कनेक्ट करिए, आप दूसरे टीचर के साथ कनेक्ट करिए. हो सकता है हमने स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे पास दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है. तो हो सकता है दूसरा टीचर कोई और अच्छे से उस चीज को हैंडल कर सकता हो. या कई बार आप अलुमनाई को इन्वॉल्व करने की कोशिश किए. आपके कोई एक्स स्टूडेंट होंगे, हो सकता है किसी को पार्ट टाइम की जरूरत, जॉब की जरूरत है. आपका कोई एक्स स्टूडेंट होगा जिसके पास एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट है, उसको बोल के देखिए कि इसको एक पार्ट टाइम जॉब दे दो. हम करते हैं ये. वी इन्वॉल्व आवर अलुमनाई इन सॉर्टिंग आउट सम ऑफ दिस फाइनेंशियल इश्यूज. आप भी ये कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग नहीं होता. ये हमारी एज ए मेंटर, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने बताया दुनिया की हर समस्या का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर सुन ले और कोशिश करें हम, तो भी वो बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती है. अब हम वी कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. ये पूरा जो मेंटरिंग का प्रोसेस है,
इसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो मैं ये 2 लाइन में डिस्क्राइब करूंगा। हेल्पिंग ए बर्ड टू ब्लॉसम इनटू ए ब्यूटीफुल फ्लावर। एक कली को फूल में बदलने का एक, आपके पास वो जो बच्चा आता है तो कली है वो, एक टेंडर बर्ड है वो। The challenge for the mentoring process is whether we can convert that bird, that lovely bird, into a beautiful flower. If that is done, then your mentoring process is successful. एक लास्ट में एक कोट है अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जिसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंक्लूड करूंगा। अलेक्जेंडर ग्रेट अरिस्टोटल के बारे में बोलते हैं, अरिस्टोटल उनके टीचर, उनके मेंटर, कि आई एम इंडेटेड टू माय फादर फॉर लिविंग। मैं अगर इस दुनिया में आया हूं, मैं अगर ये जिंदगी जी रहा हूं, मुझे ये जीवन मिला है, तो आई एम थैंकफुल टू माय फादर। मेरे पिता ना होते तो मैं इस दुनिया में नहीं आता था, या मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं आता था। लेकिन आई एम इंडेटेड टू माई टीचर फॉर लिविंग वेल। जो मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं ना, ये मेरे टीचर के कारण, ये मेरे मेंटर के कारण है। इट इज बिकॉज ऑफ माई मेंटर दैट आई एम लिविंग वेल। लाइफ तो मुझे जीवन तो मुझे दिया किसी ने, लेकिन वो अच्छा जीवन जो देने वाला है वो मेरा मेंटर है, वो मेरा टीचर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मेंटर मेंटी रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशनशिप है, ये बड़ा फ्रूटफुल और ये एक वंडरफुल रिलेशन बना रहे, और हम सब इसमें से कुछ हासिल कर पाए एज एन इंस्टीट्यूशन, एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट किसी अच्छी जगह पे चले जाए तो मेरे ख्याल से वो मेरी सैलरी की मिलने की खुशी ना, उससे भी ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं देखता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट जो है किसी अच्छी जगह पे पहुंच गया, और वो रिकॉग्नाइज करता है कि सर आइए मैं यहाँ पे हूँ करके। कई बार हम जाते इधर उधर, कई बार कोई कितने सारे बच्चे आते हैं तो हम भूल जाते हैं, कई बार चेहरे याद नहीं रहते, कई बार वो जो बैक बेंचर्स रहते हैं कई बार हमारे को याद नहीं रहते हैं वो चेहरे, तो वो कई बार वो रिकॉग्नाइज कर लेते, सर आपने मुझे पढ़ाया, बैठिए। तो दैट इज ए रिवार्ड दैट इज ग्रेटर देन योर सैलरी ऑल्सो। उसका कोई मोल नहीं, दैट इज प्राइसलेस। तो एक बच्चे को भी अगर लगे कि मेरी जिंदगी में अगर ये टीचर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता, मैं कहाँ रहता, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होता। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वो ऐसा बोलते हैं कि आई एम इंडेटेड टू माय फादर फॉर लिविंग बट टू माय टीचर फॉर लिविंग वेल, ये मेंटरिंग प्रोसेस का जो पूरा एसेंस है ये एक कोट में मुझे दिखाई देता है, ये एक सिंगल कोटेशन मुझे दिखाई देता है। द टीचर नीड्स good mentees and the mentees need a good teacher also. So that is a mutually beneficial relationship. Let us all try to make it more fruitful in the days to come. और एक कोविड वाले सिचुएशन में तो मैं बता रहा हूँ इतनी सारी समस्याएं हैं बच्चों को, और कि हमारे पास कई चीज के पूरे सॉल्यूशन भी नहीं है, कोशिश भी हम कर रहे हैं कि कुछ हो सके। जैसे मुझे कल बहुत सारे बच्चों का फोन आया, सर अभी ऑनलाइन एग्जाम होंगी तो हमारे पास तो फोन ही नहीं है। अब वो एक समस्या हम उनको बता रहे, बेटा कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदार का फोन ले लो, किसी दिन किसी बड़े आपके पड़ोस में किसी का होगा, कुछ दिन के लिए मांग लो उनसे। कुछ बच्चों को हम भी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर सेंटर पे हमारे कॉलेज में आ जाओ, वहां से एग्जाम दे दो आप, क्योंकि उनके प्रॉब्लम तो सॉल्व करने हैं हमारे को। मेरा मानना है कि हमें अगर प्रॉब्लम देखते बैठेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। That brings us to the end of my presentation. Thank you for your patient listening. It was great to be a part of this program, and I am really missing my dear friend Nihal. Nihal को मैं miss कर रहा हूँ. It would have been great to see him on the screen. Thank you Sunil sir. Thank you Honorable Dr. Priya Vanjari. And thank you all for your patient listening. अगर कुछ बच्चे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, I am open to that. Ram Teke sir. Thank you very much, sir, for your enlightening talk. It will really help us in establishing a viable and meaningful system of student mentoring. Your talk has given us an insight about implementing an effective system of student mentoring in our college.
Now we are moving towards concluding part of the program. I call upon Dr. Swati Gade Madam to propose formal formal vote of thanks. Thank you, sir. It gives me an immense pleasure to be the part of the program and carry on the final proceedings. Today, I take this opportunity to propose a formal vote of thanks. I sincerely thank Dr. Priya Vanzari Madam, who is also the chairperson of today's program. She has always been the source of inspiration for all of us. Her vision has been the guiding force because of which such innovative programs are conducted by the college from time to time. The worst condition of the pandemic has failed to dampen her spirits, which is evident from all the activities that are being carried out in the college. I would extend my sincere thanks to Dr. Karthik Panikar sir, Head, Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. He is also the IQAC coordinator of the college. Dr. Panikar is a well-known name not only in Nagpur University but also across India. I thank him for sparing his valuable time and deliver an enlightening lecture and guide our students. Through his presentation, he vividly clarified the importance of mentoring. He rightly highlighted how right mentoring at the right time works wonder. He also highlighted the grave situations arising because of the absence of sharing of the problems by the students. Our students have benefited a lot from his thoughts. He he is a mentor in its true sense, I must say. Thank you so much, sir. I also thank Mr. Sunil Ramteke sir for conducting the event successfully. I thank all the senior college teachers and who are also my colleagues. I also thank the students for their participation and patient listening. I also thank all the people who have directly or indirectly helped in making the event a success. Thank you so much. Thanks, all of you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, sir.